Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And today we shall be beginning with another alphabet, that is alphabet T. So for today, the first idiom is take a cue from someone. Taking a क्यू फ्रॉम समवन का मतलब होता है आप किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वे के अंदर इफ़ यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, so that will be known as what, taking cue from someone. So we can write it as uh, being influenced by someone, आप कह सकते हो by someone. अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो उसको बोलते हैं क्या, take cue from someone. Now in order to frame its sentence we can say that I am going to take a cue from my colleagues. From someone नहीं लिखेंगे, अब हम जिससे cue ले रहे हैं उसको लिखेंगे from. I am taking cue from my colleague and start that as new मैनेजमेंट टूल. ठीक है, तो मतलब किसी से अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो दैट विल बी रेफर्ड टू एज टेक क्यू फ्रॉम समवन. जैसे कि आई एम गोइंग टू टेक अ क्यू फ्रॉम माई कलीग्स एंड स्टार्ट using that start using that इन माई न्यू मैनेजमेंट टूल, या फिर एज माई न्यू मैनेजमेंट टूल की तरह भी आप जो है उसको वी कैन से आप जो है उसको ले सकते हो. ठीक है, सो ये बन गया आपका पहला सेंटेंस, टेक यू फ्रॉम समवन ना, तो समवन को भी अरे रे रे फ्रॉम माई कलीग्स. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था. ऑल्सो क्योंकि ये सिंपल था तो ये पी वाई क्यू में आ गया. व्हाट इज रॉन्ग? What do they want from me now? It's not getting erased. All right. What is happening to the board? I guess something is wrong with this. I have selected this instead of that. Okay. I only created the issue. So that's why. Okay, got it. This will not be getting erased now. These brackets also not getting erased. Okay, anyway, it's like this over here, and here it should be PYQ. All right, so it appeared in your PYQs, therefore it has been marked as important. ये important का sign बना लो, अब क्या ही करें, नहीं हट रहा तो. Okay, moving on to the next idiom, we have take leaf out of someone's book. When you take leaf out of someone's book, it means that you are intimidating someone. So we can say that intimidate someone in a particular way. ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर वे के अंदर कोई भी तरीका हो सकता है जिसके अंदर you can just take a leaf out of someone's book. So we can say that I am going to take a leaf
out of my friend's book. I am going to take a leaf out of my friend's book and start waking up early in order to boost my productivity. आई होप जितने भी सब लोग देख रहे हैं वीडियोस वो लोग सुबह जल्दी उठते होंगे बिकॉज आई वॉज द वन ऑफ माई फ्रेंड्स बुक. Okay, I would like to share that in my 10th and 12th class, I was the one who used to be a night owl. मतलब रात को पढ़ना अच्छा लगता था, but after some time you will realize that waking up early and studying at that point of time is even more productive as compared to the night studies, because night studies will ultimately delay your whole day. That is they will bring in, we can say, the laziness. ठीक है. So throughout the day you will be acting lazy, but at night you will be sharp, and that sharp energy can make you go through the whole night. So that is also fine if you are in light owl, but waking up early is even more beneficial and more productive from my point of view. So you can refer to that. Okay, now we are moving on to the next idiom. Okay, that is the third idiom, which says take exception to. टेक एक्सेप्शन टू मतलब स्ट्रांगली ओपोज या फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर आप स्ट्रांगली ओपोज कर रहे हो किसी भी आइडिया को, किसी भी बात को, तो यू विल बी टेकिंग एन एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. जैसे कि वी कैन से दैट आई टेक exception to my reply to your email. It came across in a rude tone. ठीक है, अगर अपोलोजाइज कर लिया है टाइम रहते तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ रूड टोन. दो इफ इट वाज अ रूड टोन देन ऑब्वियसली द कंसिडरेशन हैज टू बी देयर. ठीक है, तो आई टेक एन एक्सेप्शन टू माई रिप्लाई टू योर ईमेल एज इट केम अक्रॉस इन अ रूड टोन. और भी कुछ बना सकते हो कि if there is someone who is proposing an idea, and to that idea or policy you are not we can say you are not you are not with the same page with that person who has presented that. So you are nothing but taking an exception to that particular thing. So strongly object करना ही refers to take exception to. Or what we can say is, we can say that several board members took exception to the concern raised for the families from lower background. लोअर कह लो या फिर पुअर बैकग्राउंड कह लो, कुछ भी कह सकते हैं. पुअर backgrounds. You must be thinking that B.R. Ambedkar must have had done so much for them, and still they are experiencing something, this and that, this and that. So yes, it is very unfortunate for all of us to think of doing something unhealthy or very mean
to those people who are living in our society and sharing things with us. So we cannot think of doing such things. Still such thing prevails, so that's why I have tried to frame a sentence which says several board members took exception to a proposal. Okay, I have not written proposal. ठीक है. Several board members took an exception to the concern raised for the family members या फिर to the proposal. We can add on proposal over here. Proposal raising concerns. Here it will be raising concerns. ठीक है. So took exception to here and take exception to here. Now we are moving on to the fourth idiom for today, which says take heart. Take heart refers to having courage. To have courage, we can say. अब करेज सबसे ज़्यादा कब चाहिए होता है? When you are preparing for a courageous exam like ISS or something big, if you are planning in your life then, or you are suffering from some great disease and you are being courageous that yes I will fight, and that is something we can depend on hope as well. तो दो चीज़ों के ऊपर we can easily frame the sentence, like we can say that the news of cure gave patients and their families a reason to take heart. ठीक है. अगर पता चल गया है कि हाँ जिस बीमारी से हम ग्रसित हैं उसका इलाज आ गया है, तो दैट रेफर्स टू टेकिंग करेज लाइक हियर आई हैव फ्रेम्ड. और अगर आपको पता है कि यू हैव कवर्ड द होल सिलेबस, तो यू विल बी करेजियस इनफ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. ठीक है. तो दैट आल्सो यू कैन फ्रेम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव टेक इन देयर stride. मतलब to handle calmly. There are so many people who have so many types of phobia, different kinds of phobia for different kinds of people. You must be having some sort of phobia. I am also having some phobia. It is not very necessary the phobia I possess will be possessed in you as well. So we cannot share phobias. Okay, that is a different talk based on phobia. So the thing is how you are handling your phobia, or you must be having a person who helps you to handle that particular thing. तो उसके लिए जो आप सेंटेंस यूज करोगे वो आप कर सकते हो कैसे? टेक इन देयर स्ट्राइड. दैट मीन्स टू handle things calmly. So what we can say is we can say that after the weeks of trying, she took in her stride and managed to learn what? Managed to learn foreign language. ठीक है. अब लर्न कैसे हुई फॉरेन लैंग्वेज? तो आप कामली हैंडल करोगे इफ़ यू विल बी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डिसओरिएंटेड वर्ड्स हैं. इफ़ यू आर लर्निंग हिंदी from English background, or you are learning English from Hindi background, or you are moving on to different languages, like you are moving on to German, you're moving on to French, you're moving on to Chinese, Korean, such languages. So दिमाग हिल जाता है. दिमाग हिला देने वाली लैंग्वेजेस वो शायद ट्राई कर रही थी, जिसकी वजह से शी हैंडल्ड हर सेल्फ कामली. और वो आप फ्रेम कर सकते हो. या फिर एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंट सिचुएशन यू कैन क्रिएट इन विच द फैमिली वी कैन से द लीडर ऑफ द फैमिली
हैंडल द सिचुएशन कामली, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो इन विच देयर इज अ प्रेजेंटेशन एंड द लीडर और द मैनेजर हैंडल द सिचुएशन कामली एंड द रिजल्ट्स वर वेरी इम्प्रेसिव टू द बॉस, ठीक है, तो जिसकी वजह से सैलरी रेज भी हो गया था सबका, तो यू कैन फ्रेम सेंटेंस ऑन दैट एज वेल. So here it is taking heart and here it is took in stride. So two more sentences could be framed on basis of take in their stride. We are moving on to the next idiom which says take something as face value. जो जैसा दिख रहा है उसके लुक्स पर नहीं जाना, उसके अंदर डीप नहीं जाना, जो जैसा सामने से दिख रहा है यू आर जस्ट टेकिंग इट लाइक what it appears. Like if you are seeing this board, so you are just taking this board just because it is big, just because it is beautiful, it can change its color, it possesses touching function as well. You are not taking it. आपको सिर्फ बोर्ड दिखा and you just picked it and you just brought it home. ठीक है, तो सिर्फ वैसे ले लेना. तो gets you to use an idiom which says take something in a as a face value. So we can say that to take something as it is without getting impressed by any of its features or looks. आपने as it is, you have just taken things like we can say that don't take advertisements at its face value. They are exaggerated most of the times. ठीक है, अंदर का प्रभाव आपको नहीं पता है कि अंदर से कैसे काम कर रहा है, बस यू हैव सीन कि हाँ दिख रहा है बड़ा सा है, ले चलते हैं घर, ठीक है, तो वैसे नहीं करना है. ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का होता है कि दिखाते कुछ और है और अंदर की वो नहीं दिखाएंगे. तो आउटर थिंग्स कैन बी इम्प्रेसिव बट वॉट अबाउट द इनर पर्सनैलिटी एंड इनर नेचर एंड इट्स वर्किंग और समथिंग लाइक दैट, तो वो सब भी देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है. और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कहाँ, एडवर्टाइजमेंट्स के दौरान, जहाँ पर हमें कभी भी फेस वैल्यू नहीं चेक करनी चाहिए. ठीक है, हमेशा क्वालिटी देख करके वी शुड बाय थिंग्स. नेक्स्ट वी हैव इज टेक बुल्स बाय हॉर्न्स, नॉट बुल्स, टेक बुल बाय हॉर्न. if you take by bull if you take a bull by horn, we can say that to handle difficulties. If you are trying to handle difficulties, it will be referred to as take bull by horns. Like we can say that we need someone who can take bull by horns and lead this project to success. तो किसी मैनेजर को बोल रहे हैं कि मैनेजर ने सपोजिटली रिजाइन कर दिया, तो अब दूसरे वाले मैनेजर को बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमारी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, द बोट इन विच वी आर सेलिंग, तो उसको थोड़ा हैंडल कर सके, तो ऐसा इंसान आ जाए, तो दैट विल बी मोर देन sufficient for us. So that refers to take bull by horns. Now we are moving on to the next idiom. We have take thee at thy words. अब कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़ुबान के पक्के हैं, तो उनके लिए ये इडियम यूज़ किया जाता है. बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप लिख सकते हो क्या, ट्रूली बिलीव. ट्रूली बिलीव
या फिर इसको कह लो बात का पक्का, जुबान का पक्का, बात का पक्का। ठीक है, अगर कह दिया है ये करेंगे तो वही करते हैं। ठीक है, इधर उधर फेराफारी नहीं। तो वी कैन से दैट शी said that she would come to my house, so I should take her at her words। यहाँ पर दी दाई लग जाएंगे। ये जो दी एंड दाई का कंसेप्ट है ये शेक्सपियर के ज़माने से आया हुआ है, एंड ही वॉज द वन who was quite keen to we can say to invent new words. This is just a sort of invention only। ठीक है, तो that came from the times of Shakespeare। Moving on to the next idiom, we have the ninth one, take up for a hatchet। मतलब खुद को लड़ाई के लिए प्रिपेयर करना, तो that will be referred to by this idiom, that is to prepare for war। अब जहाँ लड़ाई का नाम आता है, वॉर का नाम आता है, तो दिमाग में दो तीन ही देश हैं जो घूमते हैं। फर्स्ट बीइंग पाकिस्तान, सेकंड बीइंग चाइना, थर्ड बीइंग यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर चल रहा है अभी हाल फिलहाल का, दैट ऑल्सो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बडी दैट इज प्लेइंग द रोल इन ऑल ऑफ दीज इज चाइना। ठीक है, तो या तो आप उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, एल्स अनदर सेंटेंस दैट यू कैन फ्रेम ऑन दिस इज we can say that after years of peace they took up for a hatchet over a property dispute। एक होता है वो डिस्प्यूट जो अमंग कंट्रीज होता है, एक होता है वो डिस्प्यूट जो इंटरनल होता है, एक डिस्प्यूट वो होता है जो विद इन फैमिली होता है, और एक डिस्प्यूट वो होता है जो विद इन वन सेल्फ होता है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो आपको किसके साथ लड़ाई झगड़े करवाने हैं, एंड ऑन दैट you can just frame a simple sentence regarding this idiom which says take up the hatchet। Okay, the, and here also it must be wrong। ठीक है, to prepare oneself for the war, that refers to take up the hatchet। Moving on to the next idiom, we have the 10th idiom which says take up with a pinch of salt। Means to listen something with a considerate doubt। कि अगर सुन तो रहे हैं पर मन में थोड़ी आशंकाएं पैदा हो रही हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। सुन लिया है पूरी क्वांटम के बारे पूरी सपोज करो कोई भी एक थ्योरी व्योरी है, आपने पढ़ ली है पूरी थ्योरी, बट दिमाग में जब आप कोई नई नई थ्योरी पढ़ते हो, नई नई हिस्ट्री के बारे में चीज़ें जानते हो, तो आपके दिमाग में पैदा होती होंगी कुछ कुछ सवाल की, थोड़ा डाउट सा उत्पन्न होता है। तो उसी के लिए आपके लिए एक नया आइडियम है जो कहता है क्या, टेक अप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या फिर ये पिंच की जगह इट कैन गिव यू ग्रेन। तो घबराना नहीं है, ग्रेन और पिंच सेम ही बात है, दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस विच सेज you should take those online reviews with a pinch of salt, they are not always reliable। ठीक है,
तो जो आप ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करने से पहले यू जस्ट गो फॉर अ रिव्यू सेक्शन कि देख लिया जाए ऐसा क्या है कि देख के आने में अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन ऑनलाइन शॉपिंग, और बहुत सारे लोग रिव्यूज़ देखकर ही चीज़ें खरीदते हैं, तो रिव्यू देखना अच्छी बात होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कंपनी इज़ क्वाइट इन इट्स इनिशियल स्टेट, तो वो क्या करती है, इट ask people, its own people, to give a good review. That turns out to be a false representation of their item or product when you handle them in your hands. तो बस उसी की बात कर रहे हैं क्या, कि हमेशा इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिलायबल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें फॉल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो टेक समथिंग, जो आपने लेना है वो यहाँ पर क्या लेना है, जो ऑनलाइन रिव्यूज आते हैं उनको बोल रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव the 11th one, which says takes after, means look similar या सिमिलैरिटी। किसी चीज़ में अगर सिमिलैरिटी आ जाए, जैसे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हो, वही सेम चीज़ है, अगर कहीं पर सिमिलैरिटी आ जाए तो उसकी बात करें। अब सिमिलर किन किन में आ गए, तो सिबलिंग्स में कोई सिमिलर आ सकता है, या फिर यू एंड योर पेरेंट्स, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स में कोई चीज़ आपस में रिलेटेड हो, तो उस चीज़ से सिमिलैरिटी आ सकती है। So for that you can frame a sentence on any of these. The one that I will frame is, she takes after her mother when it comes to her sense of humor. या तो सेंस ऑफ ह्यूमर कर लो, या फिर आप कर सकते हो क्या, he takes after his father in terms of we can say height कह लो, या कोई भी हाइट कह सकते हो, या फिर लव फॉर म्यूजिक, वी कैन से लव फॉर म्यूजिक। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए सिमिलैरिटी, लुक्स सिमिलर, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, एंड दिस विल बी नोन एज योर टेक आफ्टर। मूविंग on to the next idiom for today, we have taking a toll on, मतलब to damage something, to damage समथिंग। अब इस तरीके से पढ़ोगे, सुबह से शाम तक पढ़ोगे, तो सबसे ज़्यादा क्या डैमेज होगी, योर हेल्थ। तो उसी से रिलेटेड आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सेंटेंसेस फ्रेम किए जा सकते हैं, लाइक द लॉन्ग आवर्स एट वर्क आर टेकिंग अ टोल ऑन हर हेल्थ। ठीक है, या तो ये कर सकते हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड करके फ्रेम कर सकते हो, या फिर जो चीज़ डैमेज हो रही है वो है करप्शन की वजह से, द होल स्टेटस ऑफ इंडिया दैट इज बीइंग डैमेज, तो आप उससे भी रिलेटेड जो है सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। बट बी माइंडफुल, जो आप करप्शन के वर्ड्स यूज करोगे किसी के अगेंस्ट यूज नहीं करना, एक जनरलाइज स्टेटमेंट यू कैन फ्रेम। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव टॉकिंग through her hat, means to talk nonsense। आप सोचो, आपके सामने कोई इंसान आ जाए और बायोलॉजी से रिलेटेड बातें करने लगे, कुछ टाइम तक तो इट विल बी फाइन जब तक समझ में आ रहा है, अब समझ से बाहर होनी चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो बहुत ऊपर से जा रहा है, तो दैट यू विल बी कंसिडरिंग नॉनसेंस।
आप किसी 2-3 साल के बच्चे के सामने या फिर 6-7 क्लास के बच्चे के सामने इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट कार्टून्स एंड देयर फेवरेट म्यूजिक एल्बम्स और व्हाटएवर, आप अपने डेरिवेशंस जो है सुनाने शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देम यू वुड बी टॉकिंग नॉनसेंस या फिर टॉकिंग थ्रू योर हैट। तो in order to frame its sentence, we can say that when it comes to quantum physics, I afraid of him talking through his hat. हिम यहाँ पर सर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई बडी भी हो सकता है जो रेगुलर पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हो या फिर सर के लेक्चर्स ले रहा हो, तो उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे क्वांटम की बात की गई है। क्वांटम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों के बारे में पढ़ना। जैसे फिजिक्स के अंदर तो इट विल बी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में ही अगर मोस्टली पढ़ा जाए, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें अगर टॉपिक्स आ जाती हैं, जितनी चीज़ बड़ी होगी उतना ज़्यादा क्लियरिटी होगी, विजिबिलिटी होगी। अब जितनी चीज़ छोटी होती चली जाएगी, अब उसके अंदर आप क्या ही देख सकते हो। कैन यू मेजर द रेडियस, कैन यू मेजर द डायमीटर? नहीं, यहाँ पर तो आसानी से रेडियस भी मेजर कर लो, डायमीटर भी मेजर कर लो, पूरे का एरिया कर लो, सर्कमफेरेंस कर लो, जो मर्जी कर लो, बट दिस बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। तो क्वांटम जो है वो इसी से रिलेटेड है, छोटी चीज़ों के बारे में। देयरफॉर इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स फॉर सम ऑफ अस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says the 14th one, tall tales। जो लोग बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, ऊंची ऊंची लंबी लंबी ढींगे मारते रहते हैं, उनके लिए ये इडियम जो कहता है क्या, बूस्टिंग, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके जानकारी में होंगे, जैसे कि मेरे जानकारी में है माई grandfather used to tell tall tales of his adventures during wilderness, ठीक है। टॉल टेल्स के बारे में आप आपके यहाँ होंगे लोग ढींगे मारना बोलते हैं इसको, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको ढींगे हाँकना भी कह देते हैं, ढींगे हाँकना, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई भी काम आपके सामने हो रहा है तो आप यूज करना किसका, टॉल टेल्स का। जैसे आई हैव यूज्ड माई ग्रैंडफादर इन अ सेंटेंस, आप किसी भी व्यक्ति को यूज कर सकते हो, रियल नहीं होना चाहिए, और हो भी गया तो कोई फर्क नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज teething problems, that is problems at start of new things। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंडिया में, स्पेशली कहीं पर भी वैसे तो, कि शुरुआत में इश्यूज ना क्रिएट हो। तो इश्यूज हर जगह क्रिएट होते हैं, तो जो इश्यूज शुरुआत में ही क्रिएट हो जा रहे हैं तो उनके लिए बोल देते हैं क्या, टीथिंग प्रॉब्लम्स। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट every new business faces teething problems, but they can overcome with time teething problems, ठीक है। तो शुरुआत में अगर चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बस उन्हीं से रिलेटेड इडियम आपको जो है वो फ्रेम करना है। ऑल्सो ये आपके किसी
PYQ में आया था, तो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हो। टॉल टेल्स नहीं आया है बट स्टिल मार्क इट एज इम्पोर्टेंट, आने के चांसेस हैं, ठीक है। दो थिंग्स कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड एनी टाइम यूपीएससी के अंदर, बट स्टिल देर आर सर्टन थिंग्स जिनको हम लेकर के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर टॉल टेल्स एक तो प्रिडिक्टेड है, और दिस वन, हाँ, टेक अप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो प्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, बाकी करेंगे कल की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।